गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह सदैव विराजमान है। गुरु जी महाराज एक ही समय में संपूर्ण विश्व में अपनी हर संगत के अंग संग बने रहते हैं। हमें आवश्यकता है उन नेत्रों को विकसित करने की, उस नज़र को विकसित करने की कि हम गुरु जी महाराज को अपने अंग संग महसूस कर पाएं, देख पाएं। और हमारे इस विकास के चरण में गुरु जी महाराज के पावन सत्संग हमारी बहुत मदद करते हैं संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन सत्संग का श्रवण करने से, गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप पूरी श्रद्धा से करने से हम गुरु जी महाराज से 1-to-1 कनेक्शन स्थापित करने में कामयाब होते हैं। जब हम गुरु जी महाराज की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, तब गुरु जी महाराज हमारी ओर 100 कदम बढ़कर आते हैं। ये हम सभी संगत जी जानते हैं। हमने गुरु जी महाराज के पावन वचनों में ये श्रवण किया है संगत जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन सत्संग जो आप सभी संगत जी हमें स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं, गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच शेयर करते हैं संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। अभी गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज का पहला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1898। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी। सोनू अंकल, जय गुरु जी, सारी साध संगत। संगत जी, मैं अपना एक बहुत ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ 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 ਵੱਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ who was pregnant just had a baby girl, and throughout the journey she went through a lot of up and downs. ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਉਹਦੀ ਇਹ ਜਰਨੀ ਥੋੜੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇ during those 9 months, and then after that also for her and then the baby. So everything went smoothly during the delivery and at the hospital. Everything was fine. The baby is fine. My sister is fine. Everybody's happy at home. तो गुरु जी ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਊਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਿਊਟ ਬੇਬੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਰਨੀ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਦਣ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ
ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਆ ਤੇ ਘਰ ਲక్ష్ਮੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਲੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਏਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕੇ। ਆ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਸੁੱਖ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਰਵੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 5 डिजिट्स हैं 39786। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं प्रोफेसर बीना बुद्की जम्मू कश्मीर से अपना शुक्राना सत्संग पे प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी लख लख शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना मेरे अंग संग रहने का, मेरे मार्गदर्शन करने का और मेरा पल पल मुझे अपना मार्गदर्शन करने के लिए। गुरु जी आज का ये शुक्राना सत्संग मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि मैंने 7 जनवरी को अपने यहाँ सत्संग करवाया था। मैं हर महीने इस महीने जनवरी में मैंने 7 को करवाया था और 7 तारीख को जब मैंने सत्संग करवाया, जिन लोगों को मैंने सत्संग में आने का न्योता दिया वो तो आए नहीं, लेकिन जिनको मैं जानती भी नहीं थे आपने ऐसे लोगों को भेज दिया, वो लोग आ गए और ये मेरा बहुत अच्छा उस दिन सत्संग गया। बहुत ही अच्छी तरह से ये सत्संग हुआ। सबने अच्छी तरह से प्रसाद खाया, लंगर खाया, चाय प्रसाद पिया और जो भी था वो बहुत अच्छी तरह से 2 घंटे का सत्संग चला। तो गुरु जी ये सब आपका शुक्राना है, आपकी मेहरबानी है, आपका सारा निर्देशन है। आपकी वजह से वो सत्संग बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही सुंदर हुआ और अच्छी तरह से सभी कुछ हुआ। मैंने उस दिन आपको कश्मीरी खाना ही बना करके खिलाया और वही सबको पसंद भी आया और मुझे पूरी आशा है कि आपको भी पसंद आया होगा। गुरुजी मैंने अपनी मेरी बहन आज 3-4 महीने से बीमार चल रही है, उसके लिए आपसे अरदास करी थी कि उसको ठीक कर दीजिए, क्योंकि अभी 6 महीने पहले ही उसके पति की मृत्यु हुई है और अब वो 4 महीने से खुद बीमार है। तो अब एक ही बच्चा वहाँ है जो उसका देखभाल कर रहा है।
तो मैंने आपसे बार बार उसके लिए रोज़ अरदास करती थी। लेकिन आज जब मेरा शुक्राना सत्संग इस पे यूट्यूब पे आया और जैसे ही वो ख़त्म हुआ तो उसके साथ ही आपका मैसेज दिखाई दिया कि मैं तेरी बहन को भी ब्लेस कर दूंगा और वो ठीक हो जाएगी। गुरुजी, मुझे खुशियों का अंबार मिला, मुझे खुशियाँ इतनी मिली, मुझे इतनी खुशी हुई, जबकि आज तक मेरा दिल बहुत ही उदास था कि पता नहीं वो बहन ठीक होगी कि नहीं होगी। लेकिन आज जब आपका ये मैसेज आया तो मुझे बेहद खुशी हुई और उसी मैसेज के नीचे था कि बड़े मंदिर आने का आपने मुझे न्योता भी दिया था और कहा था कि आप अपने मायके तू आ, आराम से आ, तेरे आने जाने का भी बंदोबस्त कर दूंगा। बस आपका आपका बुलावा और हम ना आए, इतनी मेरी कहाँ हिम्मत। और मैं 19 तारीख को यहाँ से निकल रही हूँ। मैं सबसे पहले आपके दर्शन करने के लिए बड़े मंदिर आऊँगी और उसके बाद फिर मैं अपनी बहन को देखने के लिए जाऊँगी। एम्स में है वो। और मेरी आपसे आज भी यही अरदास है कि गुरुजी उसको ठीक कर दीजिएगा, मेरी उस बहन को आप ही अपनी मेहर कर दीजिएगा। अगर कोई भी गलती हो गई हो उससे जाने अनजाने में तो उसे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन उसे ठीक कर दीजिए, वरना वो घर एकदम खंडहर बन जाएगा। कोई भी नहीं, क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा, वो क्या करेगा वहाँ। तो मेरी आपसे बार बार यही अरदास है कि मेरी बहन को आप अपनी मेहर बख्श देना, उसे ठीक कर देना, उसे स्वस्थ कर दीजिए। और आज जो आपने अचानक मैसेज जब भेजा तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। गुरुजी, इसके साथ साथ मैं आपका एक शुक्राना सत्संग और भी करना चाहती हूँ, शुक्राना और भी करना चाहती हूँ कि मुझे एक पूना से एक फ़ोन भी आया था, एक मैसेज भी आया था, जहाँ 8 तारीख को हमें बुलाया गया है। और जो हमारे कश्मीर समाज के, कश्मीर की कुछ खास महिलाएं हैं, उनको ही वहाँ पर निमंत्रण दिया गया है। ये सब आपके कारण ही हुआ है। तो 8 फरवरी को मुझे वहाँ जाना है, इसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना। और मुझे पूरी आशा है कि आप मुझे वहाँ पर मेरे साथ साथ होंगे, आप मेरे अंग संग होंगे, मेरे साथ चलेंगे और जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। तो उसके लिए भी आपको बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। मैंने जब उनसे बात करी, क्योंकि मैंने अचानक, मुझे जब पता चला कि मेरा नाम भी उसमें है, तो मैंने उनको जब फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि आपको पूना आना है। तो मुझे बेहद खुशी हुई और मैंने आपका उसके लिए भी शुक्राना कर रही हूँ कि आपके कारण ये संभव हो सका और आपके कारण ही ये पॉसिबल हो सका। और अब जब मैं जाऊंगी वहाँ 7 तारीख को, 7 फरवरी को, तो आप मेरे साथ चलिएगा और मेरे साथ साथ रहिएगा। और वहाँ पर जैसा भी होगा वो सब आप देखते रहिएगा और जो भी वहाँ पर होगा वो सभी मुझे मंजूर भी होगा। तो आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मेरे घुटनों में बहुत दिनों से बहुत दर्द हो रहा है। मैंने 6 दिसंबर को इसकी ऑपरेशन के लिए डेट मांगी थी, मिली थी मुझे, लेकिन तभी मुझे मेरे दूसरे डॉक्टर ने बताया कि अभी शुगर बहुत ज़्यादा, लेवल ज़्यादा है, अभी ऑपरेशन करना ठीक नहीं होगा। तो मैंने उस दिन अपना ऑपरेशन करने का विचार स्थगित कर दिया। और अभी 2 महीने के बाद जब मैंने अपना शुगर टेस्ट किया तो 11.5 से 8.5 पर वो पहुंच गया था और 93 मेरे वज़न से 85 पे मेरा वज़न भी आ गया। तो लख लख शुक्राना उसके लिए भी। ये सब आपके कारण ही हो पाया। और अभी भी मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि जब मेरा शुगर लेवल और नीचे आ जाएगा उसके बाद आपके आदेश के अनुसार ही मैं ऑपरेशन की डेट लूँगी। मैंने गुरुजी, क्योंकि मेरे घुटनों में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैंने बेंगलोर में आयुर्वेदिक संस्थान में, आयुर्वेदिक कॉलेज में जाने का सोचा था, जहाँ पर पंचकर्मा और इसका घुटने का भी वहाँ पर वो इलाज करते हैं। और
मुझे वहाँ किसी ने डॉक्टर राव, एक मिस्टर राव है, उन्होंने बताया था कि आप यहाँ आ जाइए 15 दिन के लिए, तो आपको ऑपरेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब वहाँ मैं अगले महीने जाने का विचार कर रही थी, तो अचानक वहाँ 3 डॉक्टरों ने रिज़ाइन कर दिया, जिसकी वजह से मुझे खबर आई कि अभी आप ना आएँ। तो अब मुझे नहीं मालूम, गुरुजी जैसे आपकी रज़ा होगी, जैसा आपका आदेश होगा, मैं वैसा ही करूँगी। लेकिन मैं वहाँ इसीलिए जाना चाह रही थी कि मैं वहाँ जाऊँ और अपने घुटने का इलाज करवा सकूँ। इसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना, जैसा आप कहेंगे वैसे हम करेंगे। गुरुजी, आपका एक शुक्राना और भी मैं करना चाहती हूँ कि अभी 3 दिन पहले मेरा बेटा वो बाहर जाता ही रहता है, वो स्विट्ज़रलैंड, उसको उधर जर्मनी में जाना था इवेंट्स के लिए। तो आप कुछ दिन से मैसेज दे रहे थे कि तेरे पुत्र पर कुछ कष्ट आने वाला है। तो उस दिन मुझे पता चला कि जब वो स्विट्ज़रलैंड पहुंचा तो उसको जर्मनी एंटर करने के लिए वीज़ा उन्होंने वो अलाउ नहीं किया, और वो सुबह का वहाँ पहुंचा, शाम तक वहीं रहा और शाम को वापस वो दुबई आ गया। तो उसका वो काफ़ी नुकसान भी हुआ, वो सारा कुछ भी अटेंड नहीं कर सका। लेकिन शायद जो भी होगा, शायद अच्छे के लिए ही किया होगा। लेकिन ये भी मैं आपका शुक्राना करूँगी कि मुझे इसमें आने के लिए मेरे बेटे ने कहा था कि तुम भी 5-6 दिन मेरे पास आ जाओ और उसके बाद तुम स्विट्ज़रलैंड चली जाना। लेकिन नए साल और क्रिसमस की वजह से काफ़ी रश था, छुट्टियां थी। तो जो ट्रैवल एजेंट था उसने बोला कि शायद आपका 13 तारीख तक वीज़ा नहीं निकल पाएगा। तो इसमें भी शायद आपकी कोई अच्छी ही बात होगी कि मेरा वीज़ा तभी मैंने कैंसिल कर दिया, और बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि अगर मैं चली गई होती तो मैं आगे जर्मनी में अकेली पड़ जाती, क्योंकि मेरा बेटा तो स्विट्ज़रलैंड में ही रुक गया था, तो उसको तो आने ही नहीं दिया गया था। तो शायद आपकी रज़ा, आपने जो पहले ही मुझे रोक दिया था, उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, कि आपने मुझे जाने नहीं दिया। अननेसेसरी, नहीं तो मुझे वहाँ परेशानी हो जाती। और मेरा बेटा जो वहाँ से वापस आया, तो शायद इसमें भी कोई अच्छी ही बात होगी, तभी आपने वहाँ पर उसको वापस भेज दिया। और उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। जो मैं अभी भी आपसे मैंने अरदास लगाई हुई है, और आप मुझे बराबर भी वो बता रहे हैं कि बहुत सी खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत सी खुशी मिलेगी। मैं तो इंतज़ार करती हूँ कि कोई भी खुशी आएगी तो ज़रूर आपका सत्संग भी करूँगी। गुरुजी, एक शुक्राना और मैं आपको करना चाहती हूँ कि आपने कुछ दिन से मुझे एक मैसेज दे रहे थे कि मैं एक बच्चे के रूप में आऊँगा तो मुझे पहचान लेना। तो गुरुजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन बच्चा आएगा यहाँ। लेकिन मेरी एक इंजेक्शन वाली, जो मुझे इंजेक्शन लगाने के लिए एक लेडी आती है, तो आज अचानक उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं 3:30 बजे के करीब आऊँगी, और मैं अपने बेटे को लेकर के आऊँगी, क्योंकि मुझे स्कूल से उसे लाना है। गुरुजी, वो अपने बेटे को लेकर के यहाँ 3:30 बजे आई। तो आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने उस बच्चे को नाम पूछा तो उसने बोला शिवांश। तो मुझे इतनी बेहद खुशी हुई, और आपका वो मैसेज भी याद आ गया कि जब आपने कहा कि मैं बच्चे के रूप में आऊँगा तो मुझे पहचान लेना। मुझसे मैंने आपका लख लख शुक्राना किया, आपको अनंतम शुक्राना किया, आपको प्रणाम किया, आपको उस आपके चरण भी मैंने छुए, और मैंने जो भी मुझसे हो सका, मैंने आपका आओ भगत किया। और आपको क्योंकि छोटा बच्चा था तो मैंने उसको चाय तो नहीं दे सकी, लेकिन मैंने उसको ठंडा पीने को दिया। लेकिन बेहद खुशी हुई आज ही के दिन, जब वो मैसेज भी आया था मेरी बहन का, तो मुझे ये इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली। जब मैं खाना खाती थी इन दिनों, तो ऐसा लगता था जैसे घास खा रही हूँ, जैसे कोई कचरा खा रही हूँ, किसी चीज़ का मन नहीं करता था। आज पहली बार मैंने खाना भी इतनी अच्छी तरह से खाया, ऐसा लगा जैसे मैं खाना खा रही हूँ, और मन बड़ा ही हल्का हल्का था, क्योंकि इतने दिनों से बहन के बारे में आप कोई भी समाचार नहीं दे रहे थे। और आज आपने बच्चे के रूप में जो दर्शन भी दिए, उसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी, अब मैं 19 तारीख को यहाँ से निकलूँगी, और जब वहाँ पहुँचूँगी, या 20 को जब मैं दिल्ली पहुँचूँगी, तो सबसे पहले
बड़े मंदिर में आऊँगी, आपके दर्शन करूँगी और आप जो कि इतने दिनों से कह रहे थे कि आप बड़े मंदिर आओ, अपने मायके आओ और मैं तुम्हारे आने जाने का बंदोबस्त भी कर दूँगा, तो वो सपना भी मेरा परसों पूरा हो जाएगा। मैंने फटाफट आज सब टिकट वगैरह भी कर ली और मैं आऊँगी। सबसे पहले मैं आपके ही दर्शन करूँगी, उसके बाद ही मैं अपने बहन को देखने के लिए जाऊँगी। तो गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, रात दिखाने का शुक्राना, दिन दिखाने का शुक्राना और हर पल में हमारे साथ साथ रहने का शुक्राना। और गुरुजी, दूसरी शुक्राना मैं और भी करना चाहती हूँ कि मुझे बॉम्बे आश्रम से मुझे आपका एक बड़ा स्वरूप मिला था, जिसे मैंने फ्रेम करके आज के दिन ही अपने घर में लाया और शाम को जब मैं लेकर के आई, फिर मैंने थोड़ा कड़ा प्रसाद बनाया और 1 घंटे का मैंने सत्संग भी किया और सत्संग करके मैंने आरती करी, सब कुछ किया, कड़ा प्रसाद बनाया। तो उसके लिए भी शुक्राना कि क्योंकि वो जो आपका स्वरूप है वो झूले पे बैठे हुए एक बच्चे का स्वरूप ही कह सकती हूँ मैं, लेकिन आप बच्चे के रूप में भी मेरे पास आज मेरे घर में आपने प्रवेश किया, तो आपका गुरुजी बहुत 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 स्वागत है। और आज बड़े रूप में आप मेरे घर में आपने प्रवेश किया, उसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना। और आप मेरे घर में हमेशा विराजमान रहिएगा और आप हर पल हर क्षण मेरे साथ रहिएगा और बच्चे की तरह आप मेरे पूरे घर में विराजमान रहे, आपकी किलकारी गूंजती रहे। और आपका ये स्वरूप कुछ बिल्कुल ही हर स्वरूप से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। जैसा आपको मैंने आज तक चोले में ही देखा है, तरह तरह के चोलों में, लेकिन आज पैंट शर्ट में और बच्चे की तरह झूले पे बैठे हुए आप इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो मैं गुरुजी आपके स्वरूप के आगे ही बैठी हुई ये सत्संग बोल रही हूँ, कह रही हूँ, जो जो आप कहलवाना चाहते हैं वो मैं कहती जा रही हूँ। और मुझे बेहद खुशी है कि मैंने अपना आज सभी कार्य अच्छी तरह से पूरे किया। और गुरुजी, आप बार बार कहते हैं कि खुशियाँ आएंगी, आपको अच्छी खबर मिलेगी, तो आप जो भी देंगे उसके लिए भी शुक्राना, जो मुझे नहीं भी मिलेगा उसके लिए भी शुक्राना। और बस यही मेरी फिर से अरदास है कि मेरी बहन का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, वो अपने बच्चों के लिए उनकी माँ ठीक ठाक रहे, उसके लिए अनंतम अनंतम आपका शुक्राना। हाँ गुरुजी, एक शुक्राना मैं और करना चाहती हूँ। मैंने आपका स्वरूप और मैंने आपका ब्रेसलेट एक बीकानेर में एक मंजू शर्मा को भेजा था, उनको आज ही मैंने पार्सल कर करके भेजा ये सारी चीज़ें। और आज ही शाम को उनका फ़ोन आया कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक दिन के लिए सुबह पहुंचूं और शाम को वापस आ जाऊं आप। तो मैंने बोला मैं तो दिल्ली जा रही हूं। और तो कहने लगी आप कितने दिन वहां रहोगे? मैंने कहा मैं तो रहूंगी वहां एक हफ्ते। लेकिन कहने लगे आप क्या आश्रम जाओगी? मैंने कहा मैं तो पहले वहीं जाऊंगी, उसके बाद ही घर वर जाऊंगी। तो वो कहने लगी मैं भी आना चाहती हूँ। तो गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि वो भी मंडे को सुबह वहाँ पहुँचेगी और वो अपने दोनों बच्चों के साथ वहाँ आ रही है। और दोनों बच्चों के साथ आएगी तो उसको भी मैं आश्रम लेकर के आऊँगी, उसको भी आपके दर्शन कराऊँगी। और जो भी उसकी मनोकामना हो, जो भी वो बच्चों के लिए परेशान है, आप उस पर भी मेहर करें। और आपके दिए हुए ब्रेसलेट और आपका स्वरूप मैंने उसको पार्सल करके भेज दिया है, जो उसको मिल जाएगा। और बड़े मंदिर आकर के वो आपके दर्शन करेगी, आप उस पर मेहर करें। तो ये आपका लख लख शुक्राना है कि वो सुबह आएगी और शाम को वापस भी कहने चली जाएगी। तो इसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना आपका। और मुझे बेहद खुशी है, कल गुरुजी मैंने आपसे और भी 2 बच्चों की अरदास लगाई थी कि एक जम्मू अपने किसी काम से आया है, उसको बेवजह उस पर कुछ इल्ज़ाम लगाए गए हैं, अभी वो केस उसका चल रहा है, उसको भी सफलता मिले, वो अच्छे घर का बच्चा है, अच्छी माँ का बेटा है, उस पर आप अपनी मेहर करें। और एक और बच्चा जो अमेरिका में है, जो रोज़ी रोटी कमाने के लिए गया है, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके वो वहाँ गया है, उसे भी रोज़ी रोटी मिले, वो भी अपनी 2 पैसे कमा सके
और अपने बच्चों को पाल सके, तो मैंने उनके लिए भी कल आपसे अरदास लगाई थी। और एक संगत, एक आंटी जी मुझे आश्रम से निकलते हुए एक दिन मिली थी, जो यहाँ चैम्बूर में रहती हैं, और उस दिन वो बहुत ही अपने बेटे के लिए परेशान थी, और क्योंकि उसका वीज़ा 1 ही महीने का रह गया है, और उसकी लंदन में नौकरी छोड़ दी थी, उसने खुद ही छोड़ दी थी। लेकिन कल रात में अचानक 12 बजे रात को मुझे ख्याल आया कि मुझे उससे पूछना चाहिए कि क्या हुआ। आज जब मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने कहा कि जिस दिन आपसे बात हुई थी, उस दिन के बाद से ये हुआ है कि काफ़ी जगह से उसको नौकरी के लिए आया है, और अभी 15 दिन बाकी हैं। तो मैंने कहा फिर गुरु जी पे विश्वास रखो, गुरु जी पे श्रद्धा रखो, वही कुछ ना कुछ कर देंगे। तो उसने जब आज ये बताया तो मुझे बेहद खुशी हुई। गुरु जी, हर माँ के बच्चे का आप ख्याल रखो, हर माँ के दिल का पर आपका मेहर बनी रहे। तो मुझे बेहद खुशी हुई जब उसने ये समाचार भी बताया। उसके लिए भी आपका मैं बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी, आपकी मेहर हर माँ पे बनी रहे, हर बच्चे पे बनी रहे, और मेरे बच्चे जो आपके ही बच्चे हैं उन पर भी आपकी मेहर बनी रहे। मेरे छोटे वाले पे आप अपनी खास मेहर रखें, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों, क्योंकि वो बहुत मेहनत करता है, और वो किसी भी काम के पीछे जब पड़ता है तो भूत की तरह बहुत काम करता है रात दिन। तो आप उस पर भी मेहर करें। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर माँ पे आपकी मेहर बनी रहे, हर बच्चे पर आपकी मेहर बने रहे। तो गुरु जी, आज का ये शुक्राना मैं अगले शुक्राने के लिए तक के लिए मैं विराम देती हूँ अपनी वाणी को, और आज का ये शुक्राना मैं आपके महामंत्र कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल देने का शुक्राना, हर खुशी देने का शुक्राना। गुरु जी, जो मुझे मिले, जो कुछ भी मुझे मिलेगा उसके लिए भी शुक्राना, जो मुझे नहीं भी मिलेगा उसके लिए भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं प्रोफेसर बीना बुदकी, कश्मीर से। धन्यवाद। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5341। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के लिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, काफ़ी देर से मैं कोशिश कर रही थी मैं रिकॉर्ड करूं शुक्राना सत्संग। पहले मैंने एक रिकॉर्ड करा और मैंने वो डिलीट कर दिया, क्योंकि गुरुजी ने डांट लगाई, मैंने कोई गलती करी थी, क्योंकि उसमें मैंने ये मेंशन करा था कि मैसेज फ्रॉम गुरुजी। हम कौन होते हैं ये सब लिखने वाले कि मैसेज फ्रॉम गुरुजी? वो तो गुरुजी का सत्संग होता है, गुरुजी जो लिखवाते हैं या बुलवाते हैं वही होता है। सॉरी, मैंने गलत बोला। गुरुजी मैनू माफ़ करना। अब जो भी गुरुजी तुसी मैनू कहंदे हो, जो कह रहे हो बोलना वही बोलना, गलत ना बोलना। मैनू एक्चुअली बोलना ही नहीं आंदा सत्संग। आई एम सॉरी। आई प्रेफर कि मैं गुरुजी का सत्संग लिख के शेयर करूं, बट मैं आलसी हूँ, नहीं लिख पाती हूँ। गुरुजी को सोनू अंकल की आवाज़ बहुत पसंद है, तो वो मेरे को लगता है जैसे कि ही प्रेफर मी टू राइट, बट मेरे पास आजकल कुछ ऐसा टाइम चल रहा है कि मैंने लास्ट टाइम शेयर करा था कि गुरुजी मेरी हेल्प कर रहे हैं जॉब सर्च में, जिसमें मेरी ट्रेनिंग का टाइम चल रहा है, बट जो भी है मेरे पास टाइम नहीं है। अब सिचुएशन ऐसे आ गई है, गुरुजी ने रास्ता खोला कि मुझे जॉब का, जब मुझे लगा कि अब हो जाएगा, तब ऐसा हुआ कि उन लोगों ने मुझे मना कर दिया कि देयर इज़ सम, कुछ रुकावटें आ रही हैं मेरी जॉब में। अब मुझे पता नहीं है मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? एक तरफ मैं ये कह लो कि मैं ज़ीरो हो चुकी हूँ, पहले से ही ज़ीरो ही थी, अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गई हूँ। इतना मेरे साथ ऐसे होता है कि जब भी मैं कोई जॉब के लिए ट्राई करती हूँ, पहले मैंने एक डिप्लोमा करा, कोई डिप्लोमा करा,
कर के मैं बाद में यू टर्न ले लेती हूँ जब मेरी बात नहीं बनती। अब इसमें भी मैंने कुछ स्टडी करा है, उसके बाद भी मैं अभी यू टर्न ले रही हूँ, समझ में नहीं आ रही। शायद गुरुजी की यही मर्ज़ी है, क्योंकि मेरे को ये जो वाली जॉब है इसमें इवनिंग और वीकेंड्स का है, जो मेरे बच्चों के टाइम टेबल के साथ सूट नहीं कर रहा है। मेरी फैमिली के हिसाब से सूट नहीं कर रहा है, तो मुझे ये जॉब सूट नहीं कर रही है। सो शायद गुरुजी की इसी में मर्ज़ी है कि मैं ये जॉब ना करूँ हूँ। पर मैं थोड़ा जैसे घबरा रही हूँ, मेरे घर की थोड़ी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, हस्बैंड को बहुत गुस्सा आता है और मेरे रिश्ते में काफ़ी कड़वाहट आ चुकी है। अब मेरे हस्बैंड मुझे कुछ बोलते भी हैं ना, तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता है। और मतलब कि एक तो होता है कि नॉर्मल बात पे थोड़ा गलती करो तो झगड़ा होना, एक होता है कि बस ताने देते रहना और छोटी-छोटी बात पे मतलब कुछ ना कुछ बोले जाना, इतना गलत बिहेव करना कि जैसे ना आप दुश्मनों के साथ भी दुश्मन शायद ऐसा ही बिहेव करता होगा। इस तरह से मेरे साथ जो सिचुएशन बनी हुई है, बच्चों को भी दिखने लगा है और बच्चे भी बोल रहे हैं कि मम्मा यू गो फॉर डिवोर्स। तो गुरुजी एक तरफ से मुझे एक ऐसे भी मैसेज आने लगे हैं कि मैं थोड़ी कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ मैसेजेस देख के यूट्यूब पे, जो भी आते हैं कि ही इज़ योर सोलमेट। तो आज मैंने गुरुजी के साथ झगड़ा करा या गुरुजी के साथ मैंने अपनी शिकायतें लगाई। गुरुजी जब भी मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं, हाँ, मैंने एक गलती करी थी, मैंने नेबर के साथ बात शेयर करी थी अपने घर की, मैंने कई फ्रेंड्स के साथ बहुत मैंने गलती करी, अपने हस्बैंड की बेइज़्ज़ती करी है, जो भी है मैं अपनी सॉरी गुरुजी, अपने घर की बात बाहर नहीं बतानी है, मुझे इसका सबक मिला है कि मेरा रिश्ता ख़राब हुआ उसकी वज़ह से। आई एम सॉरी गुरुजी, ये बात मेरे हस्बैंड के कानों में पड़ी, इसलिए हमें शायद अपने घर की बात बाहर नहीं निकालनी चाहिए, सॉरी गुरुपा। बट एक इंसान माफ़ करने के लिए भी तैयार हो ना, तो मेरे हस्बैंड मुझे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा मेरे से थोड़ा रिवेंज के टाइप में थोड़ा मेरे साथ बिहेव करते हैं। बट एनीवेज़ गुरुजी शायद अपने गुरुजी ये सबके असली रंग भी दिखा रहे हैं। जिनको मैं अपना समझती हूँ, गुरुजी बता रहे हैं वो तेरे अपने हैं ही नहीं। चलो, कुछ मेरे पाप भी गुरुजी कटवा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि शायद पिछले जन्म में मैंने अपने हस्बैंड के साथ बहुत बुरा करा होगा, जिसका मुझे 10% ही मिला है, अगर 100% मिला होता तो मैं शायद मर ही जाती। शुक्राना गुरुजी। पर जब मेरे साथ वैसे गलत बिहेव होता है ना, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मेरे मन में बहुत कई बार पहले-पहले बददुआएँ निकलती थी, पर अब अभी भी गुस्सा मेरे मन में इतना गुस्सा आता है उन लोगों को लेके, मेरी सास और मेरी ननद को लेके। फिर मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी मेरे से गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है, मैं कुछ बुरा ना बोल जाऊँ, मतलब उनके मुँह पे तो नहीं बोलती हूँ, अपने अंदर ही अंदर लड़ती रहती हूँ, घुलती रहती हूँ, कुछ ना कुछ उनको बुरा बोलती रहती हूँ कि बुरा इन द सेंस मतलब ये बोलती हूँ कि अगर उनके साथ ऐसा हो, उनको के साथ कोई ऐसा बिहेव करे तो उनको कैसा लगे? ऐसे जैसे लड़ती रहती हूँ अपने अंदर ही अंदर, अपने हस्बैंड के साथ या जो भी। गुरुजी ये वाली फीलिंग मुझे नहीं चाहिए गुरुजी, मुझे माफ़ करना। अब मेरा मेरा गुस्सा मुझसे कंट्रोल नहीं हो पाता। मैं इतनी चिड़चिड़ी हो चुकी हूँ कि बच्चों के साथ भी बच्चे भी इतने चिड़चिड़े हो चुके हैं, वो भी चिड़चिड़ करते हैं, मैं भी चिड़चिड़ करती हूँ कि मेरा सर दुखता है रात को और मैं इतनी डिप्रेस हो चुकी हूँ। आई एम सॉरी गुरुपा, मैं मेरी सिचुएशन कुछ ऐसे ही चल रही है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं दुनिया की सबसे दुखी औरत हूँ, नहीं। मुझसे भी ज़्यादा दुखी से दुखी बहनें हैं जो अभी अपने दुःख से निकल रही हैं और कइयों के तो इतनी बुरी हालत है। गुरुजी मैं आपका शुक्राना करती हूँ, आपने तो मुझे रहने के लिए छत दी है, खाने के लिए खाना दिया है, कपड़े दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, तब भी मैं शिकायत कर रही हूँ, मुझे माफ़ करना गुरुजी, ये सब मेरे कर्मों का फल है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बट मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा गुरुपा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा अब। मतलब कि उस इंसान की मैं उसकी बुराई नहीं कर रही हूँ, बट ऐसी हालत हो गई है ना कि अब छोटी-सी अगर मैं तिनका भी कहीं पे रख दूँ ना, तो वो भी मेरी ना मिस्टेक बन जाती है। पहले तो चलो मिस्टेक पे किसी ने डाँट दिया, अब तो ये है कि अगर मेरी आई ग्लासेस भी कहीं पड़ी हैं ना, तो उठा के नीचे रख देते हैं कि आई डोंट वांट योर आई ग्लासेस टू बी हियर। लाइक ये कोई बात होती है? घर में सफाई करवा के भी घर में सफाई नहीं है, ये गंदा है, वो गंदा है, मतलब कि ना सर्वेंट से भी कोई ऐसा बिहेव शायद ना ही करता हो, जैसे मेरे साथ बिहेव हो रहा है। एनीवेज़ गुरुजी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँ, शायद उससे मेरे रिश्ते में कुछ बेटर हो। आजकल तो सब नाम के ही रिश्ते हैं, पैसों के नाम पे ही रिश्ते चलते हैं, जो मेरे को फ़ील हुआ है। ना ही मुझे मेरे बच्चों के साथ कोई ज़्यादा उम्मीद है। गुरुजी जानते हैं मेरी क्या सिचुएशन है। पर एनीवेज़ आई एम सॉरी गुरुपा, मैं रोना नहीं चाहती। आई वांट टू बी स्ट्रॉन्ग। मैं इस टाइम ज़ीरो हो चुकी हूँ, ना मेरे पास नौकरी है और ना ही मेरा रिश्ता बचा है। अब मैं अकेली हूँ और बच्चों बच्चों से मुझे कुछ ख़ास उम्मीद नहीं है, पर वो छोटे हैं अभी, उनको जो भी मेरी सिचुएशन है अभी, मुझे पता है मेरे जैसी सिचुएशन में बहुत सारी लेडीज़ होंगी। आई एम सॉरी गुरुपा, मैं रोना नहीं चाहती। मैं बहुत कोशिश करती हूँ मैं स्ट्रॉन्ग बनूँ, मैं अकेले बैठ के रो लेती हूँ, बट आई एम सॉरी, मुझे ऐसे सत्संग में रोना नहीं चाहिए, आई एम सॉरी।
यही बोलना चाहती हूँ कि बस जो भी मेरी सिचुएशन बनी है मुझे पता है वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। बट मुझे ना झेलनी मुश्किल हो रही है गुरुजी, मेरे को बहुत डिप्रेशन हो रहा है। सो आई एम सॉरी गुरुपा। बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँ, और मेरी मेरी सब बहनों से ये गुज़ारिश है कि किसी को भी आजकल के टाइम में हाउसवाइफ नहीं बनना चाहिए। मेरी सिचुएशन ये है कि अब मेरा जो टाइम स्लॉट है बहुत ही छोटा है बच्चों के स्कूल के हिसाब से, लाइक 9 टू 3:30 का है। उसी बीच में मुझे जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, और गुरुजी चाहेंगे तो वो अपने आप जहाँ भी लगवानी होगी ये जॉब लगवाएँगे मेरे टाइम के हिसाब से। मुझे पूरा भरोसा है। मैं उस समय की वेट कर रही हूँ जब मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, और गुरुजी जो चाहेंगे, जिस तरह से मेरी लाइफ़ को मोड़ेंगे, मैं मुड़ जाऊँगी। बट मुझसे इस बंदे की अब और ये सब बर्दाश्त नहीं होता। सॉरी गुरुपा। अब आप देखो, आप ही जानो क्या करना है। मैंने सब आपको सरेंडर करा है, पर हाँ, पूरी तरह से सरेंडर नहीं कर पाई हूँ शायद। बहुत पापी हूँ, बहुत सोचती हूँ गलत, जो मेरे साथ कोई गलत करे उनके बारे में कुछ गलत सोच जाती हूँ। मेरा मन अभी भी मैला है, मुझे माफ़ करना गुरुपा, इस मन को पवित्र करो। बस मुझे और हिम्मत दो, मुझे बस मेरे पैरों पे खड़ी कर दो गुरुपा। बस बाकी आपकी मर्ज़ी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0840। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी सारी प्यारी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं छतरपुर से बोल रही हूँ। मैं आप गुरु जी का शुक्राना सत्संग पावन मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं अपने छोटे बेटे की शादी में, मतलब अक्टूबर स्टार्टिंग की बात है, मैं कार्ड बांटने जा रही थी प्रीतमपुरा। तो रास्ते में मेरे आगे एक ब्लैक कलर की गाड़ी आई, जिसका नंबर, काली ब्लैक गाड़ी थी, 77777 ऐसे ही नंबर था कुछ। अच्छा, 2 बार वो गाड़ी मेरे सामने से निकली, कई बार पीछे हो जाए, कई बार सामने आ जाए, ऐसे 2 बार हुआ। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर जब तीसरी बारी गाड़ी सामने आई तो गुरु जी ड्राइविंग सीट पे बैठ के ड्राइव कर रहे थे, वाइट और स्काई चोले में, प्रिंट वाले वाइट और स्काई चोले में। मैं हैरान हो गई भी, गुरु जी कैसे मेरी तरफ देख रहे गाड़ी में से और ड्राइव कर रहे। बस मैं मतलब कहती रह गई शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन उसके बाद वो गाड़ी नजर नहीं आई मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का शुक्राना कैसे करूं, मेरे पास वो शब्द ही नहीं है, मैं गुरु जी का शुक्राना करूं। जब से गुरु जी ने हाथ पकड़ा है, जब से लाइफ बदल सी गई है, सब कुछ सही होता जा रहा है। शुक्राना 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 मेरे गुरु पा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। लख लख वारी शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। सारी संगत का शुक्राना, सोनू अंकल का भी शुक्राना। गुरु जी उनकी फैमिली को, सोनू अंकल को बहुत ब्लेस करें, वो बहुत तरक्की करें, क्योंकि वो सबके सत्संग इतने मधुर आवाज में सत्संग शेयर करते हैं। और हमारी फैमिली को, मेरे परिवार को, बहन भाइयों को, मेरे सब बच्चों को, सबको ब्लेस करें। सब काम आप गुरु जी को सौंपे हुए हैं, सब अपने आप देखेंगे कैसे करना है, कैसे नहीं करना। सब गुरु जी को सौंप रखा है, जैसे करेंगे वो ठीक है, जैसे उन्हें सही लगेगा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का भी शुक्राना। गुरु जी महाराज की असीम प्रेरणा से ही, गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से ही आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग रिकॉर्ड किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8709। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, आज मेरा 8वां सत्संग है। गुरुजी ने मुझे 21 सत्संग शेयर करने को कहा है। तो संगत जी, मुझे गुरुजी के कुछ मैसेज अच्छे भी आ रहे हैं और कुछ थोड़े जो ठीक नहीं है वो भी आ रहे हैं। तो गुरुजी का मुझे मैसेज आया है कि संगत जी, आंटी तुम दोनों एक दूसरे से इतना क्यों झगड़ते हो? एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, एक दूसरे से बात करो और अपने मन में चल रही गलतफहमी दूर करो। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हारे रिश्ते को मैंने स्वयं आशीर्वाद दिया है। तुम दोनों सदा एक साथ ही रहोगे। अब काम चोरी किए बिना ये उन जोड़ों को भेज दो किसी न किसी गलतफहमी के कारण एक दूसरे से दूर हैं। और जाते जाते अपने गुरु का शुक्राना जरूर करके जाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, एक और मैसेज आया। बेटा, मेरा आशीर्वाद है, इस संडे से सुखों की हवा तेरे घर में बहनी शुरू होगी। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। और एक ये मैसेज है, तूने अपने बच्चे के लिए मुझसे अरदास की है कि कर दिया कल्याण तेरे बच्चे के जीवन का। उसकी सेहत और उसके आने वाले जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से भी शुक्राना और मेरी तरफ से भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज बेटा, आज तेरी किस्मत पलटेगी। शुक्राना कर, जल्दी जल्दी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर। शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। पुत्र, तेरी हर उम्मीद और आशा जो तूने मुझसे लगा रखी है वो मैं ज़रूर पूरी करूँगा। मुझे पता है तू अपनी परेशानी से भरी जिंदगी को चलाती चलाती थक गई है। अब तुझ में और दुख झेलने की हिम्मत नहीं है। पर मेरी बच्ची, तू जानती नहीं है कि तेरी तकलीफ़ से ज़्यादा तकलीफ़ मुझे होती है। जब तू रोती है मेरा दिल भी बहुत रोता है। बस थोड़ा सा सब्र और कर ले। बहुत जल्द मैं तेरे सारे दुखों का अंत कर दूंगा हमेशा के लिए। तो गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना। मिठाइयाँ मंगवा ले पुत्र, तेरी अर्जी लग गई है। गुरु जी के दरबार में खुश हो जा। शुक्राना कर लियो, तेरे मन की हर इच्छा हो रही पूरी। अब धरती से आसमान तक तेरा नाम हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, एक मैसेज मुझे ये भी आया है। तेरे बेटे का बहुत बुरा समय चल रहा है। तुझे मैं इतनी बार सचेत कर रहा हूँ पर तू समझती नहीं है। आज मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, संभल जाओ, उसका ध्यान रख। कल मंगल है, मंगल के दिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर और 2 लड्डू हनुमान जी को अर्पण कर और एक माचिस की भरी डिब्बी मंदिर में दिया जलाकर छोड़ दे, जिससे उसके कष्ट कटेंगे। तो गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जो आपने कहा गुरुपा, मैं वैसे ही करूँगी। हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी को 2 लड्डू का भोग लगाऊंगी और
हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ूंगी और माचिस की डिब्बी भी वहाँ पे रख दूंगी गुरुपा। और जो भी कष्ट संकट है मेरे बेटे पे उनको आप काट देना गुरुपा, और मेरे बच्चे की रक्षा करना गुरुपा। गुरुपा वो हमारे पास यहाँ नहीं है, वो अपनी जॉब पे है, तो गुरुपा हम बच्चों के साथ हर वक्त नहीं रह सकते। मेरे प्यारे गुरुपा, आप ही मेरे बच्चों मेरे बेटे की रक्षा करेंगे और उसे ब्लेस करेंगे गुरुपा। आप बच्चों के साथ अंग संग सहाय रहना गुरुपा, और जो भी कष्ट संकट है उनको काट देना गुरुजी। अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो संगत जी और गुरुपा तो मुझे माफ़ कर देना, और हम आपके नादान बच्चे हैं गुरुपा। अगर सत्संग में कोई भी गलती करूं तो उसके लिए माफ़ करना गुरुपा, और मेरे बच्चों पर मुझ पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी और कल दोबारा अपना सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम आपका कितना भी शुक्राना करें वो कम है गुरुपा। शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7457। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी की बढ़ियाई मैं क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ, कहाँ से शुरू करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा संगत जी। लेकिन गुरु जी के रोज़ मैसेज आ रहे हैं कि कुड़िए तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, खुशियाँ तेरी इंतज़ार कर रही है, बट पहले शुक्राना शेयर कर। तो मैंने आज सोचा आज शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। संगत जी, मेरे साथ ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत कुछ ये आए, बट गुरु जी ने मुझे संभाल लिया। संगत जी, मैं गुरु जी से 1 साल से जुड़ी हूँ। ऐसे तो गुरु जी ने कई जन्मों से मेरा हाथ पकड़ा है, बट मैं 1 साल से उनके हुक्म मान रही हूँ। गुरु जी हर पल, हर क्षण, हर सेकंड मेरी हेल्प करते हैं। संगत जी मेरे परिवार की रक्षा करते हैं गुरु जी। गुरु जी के मैसेजेस, मतलब कुछ भी ये होना हो तो गुरु जी के मैसेज आ जाते हैं। टेलीपैथी के थ्रू वो बता देते हैं कि ये कर, 2 दिन भारी है ये कर। गुरु जी, संगत जी, अभी मेरे अचानक से घर खाली करने का ये आ गया। अभी इस घर में आए हुए मुझे 7 मंथ ही हुए हैं, बट गुरु जी के हुक्म आ रहे हैं कि कुड़िए मैंने तेरे लिए सोना घर देख करके रखा हुआ है, तो अपने गृह प्रवेश की तैयारी कर ले। अब ये नहीं पता मेरे को कहाँ जाना है, कॉम्प्लेक्स में ही रहना है, कॉम्प्लेक्स के बाहर जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, बट फरवरी में मुझे दूसरे घर में फ्लैट में शिफ्ट होना है। तो मैंने सब कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया है संगत जी। वो जाने और उनका काम जाने। मैं गुरु जी बोलते हैं ना टोटल सरेंडर कर दो, तो मैंने टोटल सरेंडर कर दिया है। मेरे परिवार और मैं पूरी तरह से उनके चरण शरण में है। और मैं क्या बताऊं गुरु जी के बारे में। गुरु जी के स्वरूप, मतलब जो चंदन टीके में रोज ओम का दर्शन देते हैं, गणेश जी का दर्शन देते हैं, हमेशा मतलब वो दर्शन देते ही रहते हैं मुझे। कुछ भी, मतलब कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी बड़े से बड़ा ये आ जाए, उसमें एक स्थिरता आ गई है संगत जी मुझ पे। पहले बहुत पैनिक हो जाती थी, बट अभी
मैं शांत रहती हूँ कि ठीक है, हो जाएगा। गुरुजी है ना, गुरुजी मेरे हेड ऑफ द फैमिली मेंबर है। जो गुरुजी बोलेंगे, जो जैसा वो चाहेंगे वही होगा। हम लोगों ने टोटल सरेंडर कर दिया है संगत जी। संगत जी, गुरुजी वो हमेशा बोलते हैं मांगो मत मानो। हम लोग इंसान हैं संगत जी, ऐसा होता नहीं। और मैं उनको अपनी पापा मानती हूँ, मैं उनकी बच्ची हूँ। अपने बाप से कुछ भी मांगने का, जिद करने का उनके बच्चे का हक होता है, अधिकार होता है। तो मैं गुरुजी से मांगती हूँ, कुछ भी लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, उन्हें प्यार भी करती हूँ, मान सम्मान इज्जत भी देती हूँ, सब बातें उनसे करती हूँ। आज बहुत हिम्मत करके बैठी हूँ संगत जी, मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी हूँ, बहुत हिम्मत करके बैठी हूँ कि आज तो मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना ही करना है, क्योंकि ये गुरुजी के हुक्म है। आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी के हुक्म से। और उन्होंने बोला आज तो सत्संग शेयर कर, सुबह खुशियाँ तेरे घर में आएगी, बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी। तो संगत जी, मैंने सब उन पे छोड़ दिया है, वो जाने और उनका काम जाने। संगत जी, अभी मैं 2-3 बार अमृत बेले गई, गुरुजी ने अमृत बेले बख्शा। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अमृत बेले जाऊंगी, बट मुझे इनविटेशन आया, मैं गई। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 ही अलग फीलिंग, बहुत अलग सा वो डिवाइन कनेक्शन हुआ, बहुत अच्छा। और गुरुजी ने जोत में दर्शन दिए, और जोत में दर्शन दिए, बालाजी के रूप में दर्शन दिए, गुरुजी के रूप में दर्शन दिए, माँ चिंतपूर्णी के रूप में दर्शन दिए, गुरु गोविंद सिंह के रूप में दर्शन दिए, सब जोत में दर्शन दिए। मैं बहुत धन्य हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत लकी हूँ, बहुत 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 बहुत। गुरु जी ने अपना प्रेजेंस फील करवाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे रोज गुलाब की खुशबू के रूप में भी गुरु जी दर्शन देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु का, बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल एक दिन अचानक, उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी, सर चक्कर दे रहे थे, स्पॉन्डिलाइसिस का उनको प्रॉब्लम है। वो वॉशरूम गए, वॉशरूम में गिर गए। कैसे गिर गए, कब गिर गए, उनको कुछ भी पता नहीं, अचानक से गिर गए। और बोल रहा मुझे पता नहीं, वो बेहोशी के हालत में थे। बाहर से गेट ये करने लगी, पीटने लग गई, और जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी करने लग गए। उन्होंने कैसे भी करके गेट खोला, और उसके बाद फिर मैंने देखा बहुत सारे वोमिटिंग किए हुए, जीभ से, दांत से उनके जीभ कट गए, ब्लड भी आ रहे थे। और उनसे पूछा तो वो बोल रहे हैं मुझे पता ही नहीं कि ये सब कैसे हो। तो उस जगह पे बहुत बड़े कष्ट काटा गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु का, मेरे हस्बैंड अंकल को लाइफ ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु का, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरे बेटे, मेरा बेटा, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटा है। मेरा छोटा बेटा गाड़ी लेके वो अपने फ्रेंड के पास गया हुआ था। मेरे गाड़ी के कांच, जो विंडो का जो कांच है वो नीचे हो जाने से ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो ऊपर नहीं उठता। तो उस दिन रात को बहुत ठंड थी, अचानक से कोई बैठा हुआ था, मेरे बेटे के फ्रेंड बैठे हुए थे, उन्होंने नीचे कर दिया तो वो कांच ऊपर जा ही नहीं रहा किसी तरह से भी। और मेरा छोटा बेटा गुरुजी को नहीं मानता था, नहीं मानता था, वो बोलता था, मतलब कुछ ऐसा नहीं मानता था, बस कुछ बोलता नहीं था बस। तो उस दिन उसने बोला कि मम्मा, मैंने रात को 2 बजे बोला कि सच में गुरुजी ऐसा, गुरुजी हैं क्या, तो आज बोल करके देखता हूँ। तो मेरे बेटे ने बोला जय गुरु जी, जय गुरु जी, 2 बार बोला, दोनों कांच ऊपर हो गए, जो कि नहीं होता, बिल्कुल नहीं। वो अगर नीचे हो जाता तो मैकेनिक के पास ले जाना पड़ता है उसको, ये करने के लिए, ठीक करने के लिए। तो उसके लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु का, अनंतम शुक्राना। अब मेरे बच्चे मानने लगे गुरुजी को, बहुत मानने लगे, बहुत प्यार करने लगे गुरुजी को। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल भी मानते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं शंकर जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। गुरु जी मुझे जो जो बुलवा रहे हैं वो मैं बोल रही हूँ। मेरे ब्रेस्ट में गांठ थे जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी। मेरे ब्रेस्ट में गांठ थे, वो मेरे 29 साल से थे, जैसे शादी होकर के आई तब से थे। मैंने सब जांच करवाए, ये करवाए, मेमोग्राफी करवाए, उसमें फाइब्रोएडेनोमा निकला। बोले नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, बट शरीर में थे तो मुझे डर लगता था कि पता नहीं क्या है, कहीं कैंसर तो नहीं, डर बना रहता था। जब से गुरुजी से जुड़ी, जल प्रसाद और चंदन टीका का वो सुना, मैंने यूज करना शुरू कर दिया। जल प्रसाद, चंदन टीका दोनों लेना शुरू कर दिया और ठीक हो गए। मेरे 3 गांठ थे, 3-4 गांठें थे, सब ठीक हो गए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरे ससुराल में, जो कि मैं अभी 10 साल 11 साल से अपना सेपरेट हूँ, अपने दोनों बच्चों और अंकल जी के साथ में, हम लोग 4 जन साथ में रहते हैं और एक मेरे गुरुपा, हम लोग 5 जन साथ में रहते हैं। लेकिन जब तक मैं साथ में थी अपने सास ससुर के, देवर देवरानी के, उन लोग बहुत ब्लैक मैजिक करते थे। हर अमावस को उन लोग गायब रहते थे, ये रहते थे, कुछ भी ऐसा प्रसाद वगैरह लेकर के आए तो मुझे खिला देते थे और मैं खा लेती थी। संगत जी, मैं क्या बताऊं, मतलब मुझे नींद ही नहीं आती थी और बहुत मतलब डर लगना, ये लगना, बहुत कुछ होता था। लेकिन सब कुछ अभी, सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ सही हो गया, सब गुरु जी की कृपा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी ने हाथ पकड़ा है तो सब अच्छा होगा और सब अच्छा हो रहा है मेरे साथ, बहुत 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 अच्छा हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1503। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी महाराज जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी की जितनी बढ़ाइयाँ करो उतनी कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज जी का, मेरे परिवार को हर संकट से बचाने का। बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, लाइफ के अंदर छोटे बड़े चैलेंजेस आते रहते हैं, पर गुरु जी महाराज जी की अगर कृपा दृष्टि आपके ऊपर है तो आप उन चैलेंजेस को जो है पार कर लेते हो। अभी क्या हुआ था कुछ देर पहले कि मेरी जो कार थी वो ख़राब हो रही थी। मैं उसको ठीक करवा रही थी और वो बार बार ख़राब हो रही थी। तो क्या हुआ कि उसका जो लेफ़्ट साइड वाला टायर है उस पे बार बार जो है उसका जो व्हील है वो टूट रहा था। उसको बार बार हम वेल्ड करवा रहे थे फिर, लेकिन वो टूट ही जा रहा था। और उसका जो ओरिजिनल व्हील है उसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आ रही थी, जो कि हमारे बजट से बिल्कुल बाहर जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे अंकल जी मैनेज करते थे पहले, लेकिन अब जो है वो यहाँ नहीं है, वो गुरुजी महाराज जी के पास हैं। तो ऑब्वियसली जो है सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ती हैं, हैंडल करनी पड़ती हैं। तो मैं गुरुजी महाराज जी से यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी महाराज किसी तरह जो है इस प्रॉब्लम को जो है हमारी हेल्प करिए, दूर करिए। तो क्या हुआ संगत जी कि हम सोच ही रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा था कि टायर के अंदर बार बार जो उसकी हवा है वो निकली जा रही थी। तो मैं बार बार एयर फिल करवा रही थी, लेकिन वो बार बार जो एयर है वो निकलती जा रही थी। तो लेकिन ये था कि उसको एयर फिल करवाने में वो 3-4 दिन जो है हमारे काट देती थी। तो मेरे को ये था कि चलो हम कोई अच्छा गैरेज वाला मेरे को मिल जाएगा जो मुझे रीज़नेबल प्राइस देगा, तो मैं ठीक करवा लूँगी इसको। तो हुआ क्या कि संगत जी की जो है मुझे लगा, मैंने उस दिन एयर फिल करवाई और मुझे लगा 2-3 दिन जो है ये चल जाएगा। लेकिन जैसे ही सुबह उठी तो मेरे बेटे का पेपर था, उसके प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, तो उसका एग्ज़ाम था और
टायर के अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं, दैट इज़ ज़ीरो। बड़ी टेंशन हो गई। उधर से बेटे का टाइम पे पहुंचना है, उधर से जो है इस कार के अंदर बिल्कुल हवा नहीं है। गुरुजी महाराज जी का नाम लेके जो है हम घर से चल दिए, और मेरे बेटे का जो स्कूल है घर से अप्रॉक्सीमेटली उसमें 25-30 मिनट लग जाते हैं पहुंचते पहुंचते। अब गुरुजी महाराज जी का नाम लेके बैठ गए। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, बैठो, आपको टाइम से पहुंचाएंगे गुरुजी महाराज। बस इसी अरदास के साथ मैंने कहा गुरुजी मैं नहीं गाड़ी चला रही, आप चला रहे हो, आप अपने बच्चे को किसी भी तरह एक बार स्कूल में पहुंचा दो, उसका एग्ज़ाम ठीक टाइम पे हो जाए, उसके बाद मैं गाड़ी को जो है देख लूँगी, ले जाऊँगी गैरेज में, कोई भी नज़दीक गैरेज होगा वहाँ पे लेके जाके उसको जो है चेंज करवा दूँगी। संगत जी, असीम कृपा गुरुजी महाराज जी की, उस ज़ीरो प्रेशर फ्लैट टायर में मैंने 25-30 मिनट वो गाड़ी चलाई बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी इशू के। वो गाड़ी जो है हमें ले गई मेरे बेटे के स्कूल। मैंने उसको सही टाइम से पहले उसको स्कूल में जो है उतारा, उसको कहा कि आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम दो और मैं आपके पास टाइम से पहुंच जाऊंगी। फिर मैं गैरेज वाले के पास गई तो उसने कहा कि हम आपको इस प्राइस के अंदर जो है एक नहीं, इस 4 टायर आपके बदल देंगे, जो व्हील है वो बदल देंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जो प्राइस मुझे मेरे बजट में नहीं आ रहा था संकट जी, वो प्राइस मुझे उस गैरेज से मिल गया। हालांकि वो व्हील्स जो थे वो ओरिजिनल नहीं थे, डुप्लीकेट थे, लेकिन मुझे वो प्राइस रीज़नेबल लगा और मैं जो है ओरिजिनल व्हील्स अपने घर में ले आई, और साथ में मुझे बड़े रीज़नेबल प्राइस में जो है वो व्हील्स भी जो है गुरुजी महाराज जी ने फिक्स करवाए और जो है हमारा ये प्रॉब्लम जो है उसको दूर किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मुझे नहीं लगता था कि कभी भी जीवन के अंदर मैं ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को भी जो है, जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी, उनको आप इतने आराम से प्यार से जो है कटवाओगे। तो बहुत बहुत शुक्राना है आपका, हमको हिम्मत देने का और हमको जो है हर संकट से बचाने का। अभी गुरुजी महाराज जी मुझे बार बार यही सुनवा रहे थे सत्संग के थ्रू कि बेटे तेरे घर वाले जो हैं, जो तेरे ससुराल वाले हैं, वो नहीं चाहते कि तुम लोग जो है कुछ करो ज़िंदगी के अंदर, तो वो कुछ ना कुछ चीज़ें करते जा रहे हैं। तो गुरुजी महाराज जी से यही अरदास है कि उनको सद्बुद्धि दें और उनको जो है सही मार्ग और रास्ता दिखाएं, और वो ये कार्य जो भी नेगेटिविटी जो भी वो सोचते हैं हमारे प्रति जो है उसको कटवाएं, ख़त्म करें उसको, और उनको जो है सद्बुद्धि दें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। गुरुजी महाराज जी हमें, मेरे को और मेरे बेटे को जो है कभी 222, 555 की ब्लेसिंग्स नंबर्स जो है, एंजल नंबर्स हमको दिखाते हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। कभी 77, कभी 777, कभी 222, कभी 55, कभी 555। तो इन सब ब्लेसिंग्स के लिए गुरुजी महाराज जी का बहुत 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 शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज जी का। मेरे बच्चे के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, वो जो है थोड़ा सा पढ़ाई में जो है अभी गेम्स खेलता रहता है, तो मेरे को यही है कि वो अपनी पढ़ाई में थोड़ा फोकस करे और उसका जो ध्यान है, उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगे, ना कि गेम्स के अंदर लगे। और मुझे पता है गुरुजी महाराज जी जो हैं वो कहते हैं कि जब तेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं उसका साथ निभाऊंगा। तो इतनी अपार कृपा और ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी महाराज का ही बच्चे हैं हम, और हमारे अंदर इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि हम जो है गुरुजी महाराज जी के लिए कुछ करें। हाँ, गुरुजी महाराज जी कहते हैं मुझे जो है तुम जो है सच्चे मन से याद करो, मैं तुम्हारे पास हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज, पल पल साथ निभाने का, हर चीज़ के लिए शुक्राना है आपका, कोटि कोटि शुक्राना। और अपनी कृपा जो है ऐसी मेरे परिवार के ऊपर बनाए रखें और हमें जो है हर संकट और जो है परेशानियों से जो है दूर रखें, और हम हर चीज़ का सामना जो है आपके साथ मिलकर जो है हमें ये ज़िंदगी जो है गुजारनी है। गुरुजी अब कोई नहीं है संगत जी, गुरुजी महाराज जी कहते हैं कि तेरा कोई नहीं है, सब जो है तुझसे जो है कॉम्पीट करते हैं और जलते हैं। तो मेरी यही अरदास है गुरुजी महाराज जी से कि मैं किसी के साथ कुछ कहती नहीं, किसी को कुछ बोलती नहीं। पता नहीं गुरुजी महाराज क्यों मेरे से लोग जलते हैं या कॉम्पीट करते हैं या जो भी करते हैं। आप उनको खुद देखें, आप उनको खुद संभालें
मुझे कुछ नहीं पता, बस अपने कृपा जो है मेरे को अपनी बनाए रखे हमारे ऊपर। इसी अरदास के साथ मैं गुरुजी महाराज जी का नया शुक्राना सत्संग जल्द शेयर करूँगी। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना, पल पल का शुक्राना। मेरे बच्चे को हर कष्ट से, हर संकट से दूर रखने का शुक्राना। वो आपका ही बच्चा है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। और अपने बच्चे के ऊपर अपना सिर पे उसके हाथ रखे गुरुजी महाराज, हमेशा उसकी रक्षा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, भूल चुक माफ गुरुजी। थैंक यू संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज के पावन संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंची है। गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।